अरे तो तुम कौन हो? भाई आवाज ना रखिए। काले जब देखो जब यहाँ पे मगजमारी करवाता है। છેલ્લા ઘણા સમયથી જબરજસ્તી પોતાની જાતને નેતા અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર તરીકે પોતાને સ્થાપિત કરવા અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના આકાઓને ખુશ કરવા જે પ્રયત્નો અહીંયા થઈ રહ્યા છે. થોડા દિવસ અગાઉ કોર્પોરેશનની ઓફિસમાં છત્રી લઈને બેઠા, ખેસ લઈને બેઠા, આયુષ્યમાનમાં ઓફિસમાં એમના ટેબલમાં ખેસ, સિવિક સેન્ટરમાં છત્રી, રોજિંદુ આ કામગીરી લઈને આ લોકો કામગીરી કરતા હતા. અને છેલ્લા સમયથી વિસ્તારમાં જે કોઈ બી અહીંયા આવતો હોય, જેવી રીતે આરટીઓમાં કોઈ લાયસન્સ બનાવવું છે, આ બનાવવું છે, પકડી લે છે એજન્ટ, એ રીતનું, અને કોર્ટમાં જામીન કરાવી છે, શું કરાવવું છે એ રીતના આ લોકોનો પ્રયત્ન હતો. કોઈ પણ દુઃખી વ્યક્તિ આવતો હતો, પરેશાન વ્યક્તિ આવતો હતો. અમારું કહેવું એક જ છે કે તમે સમાજમાં એક જ છો, સમાજ માટે કામગીરી કરો, પક્ષાપક્ષીને બાજુ પર રાખો. આજે કોઈ કોઈનું નથી, આપણે સમાજમાં કામ કરીશું. અલ્લાહ તાલા જે કંઈ બી છે એ જુએ છે. અને કાર્યકર્તા બનો, લોકોને મદદમાં બનો, મદદરૂપ થાઓ, કાયરકર્તા ના બનો. આ કાયરકર્તા બની ગયા હતા, હતાશ થઈને જે ભારતીય જનતા પાર્ટીને બીજાની આમ આદમી કે એને MIM એ લોકો હારી ગયા છે. પોતે કહે છે અમે હતાશ, હિંમત નથી, ફલાણું નથી. અરે ભાઈ, જ્યારે અમે મારી સાથે આ જ કાઉન્સિલર હતા MIMના, એ સમય પછી શું કર્યું હતું? કેમ એ પાણી કાઢી ન શક્યા? કાલનું તો પાણી છે જ નહીં, કાલનું ગટર નથી, બધું જ છે. જે જગ્યાએ કામગીરી અમે વારંવાર માનવતા ખાતર કરી છે, સુપર સર્કલો લઈ જઈને કરી છે, એ લોકોને ઉશ્કેરાયા. નો ડાઉટ અમે કહીએ છીએ પ્રજા ખૂબ પરેશાન છે. હું તો બોર્ડમાં લાસ્ટ ટાઈમમાં બોલ્યો હતો, કાંકરિયામાં પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં જાનવર જલસા કરે છે, જાનવરો મરી ના જાય તેની ચિંતા હોય છે. આ પ્રજાને મરી જાય તો એની ચિંતા નથી. પીવાનું પાણી નથી મળતું. પીવાના પાણી માટે હું હાઈકોર્ટમાં દ્વાર ખખડાયો હતો. સાથે સાથે ડ્રેનેજ અમને આમ નથી મળી, ડ્રેનેજ માટે બી હાઈકોર્ટ લડ્યા છે તો ડ્રેનેજ મળી છે. પીવાનું પાણી મારી PIL ચાલુ છે, ફંડામેન્ટલ રાઇટ છે. પીવાનું પાણી નહીં મળી શક્યું લોકોને. સાથે સાથે નલ જલ યોજનામાં નેટવર્ક નાખવામાં નથી આવ્યું. લોકોએ 4 વર્ષથી પૈસા ભર્યા હતા, એનું બી કામ નથી થયું. એની બી અમારે વારંવાર લડત છે. અને સાથે સાથે હાઈકોર્ટમાં બી અમે વારંવાર ટકોર મૂકીએ છીએ, એફિડેવિટ મૂકીએ છીએ. પણ આજનો ભારતીય જનતા પાર્ટીનું શાસન માના નામે પેડ, અમે કીધું બધી જગ્યા લગાડો પેડ, પણ પેડ લગાવતા પહેલાં આ પ્રજા અહીંયા 2 ટેન્કર ચાલતા હતા, એ ટેન્કર બી છીનવીને લઈ ગયા. અને પેડ સુકાઈ ના જાય એની ચિંતા છે, આ પ્રજા મરી ના જાય એની ચિંતા નથી, પાણી વગર તડચી રહી જાય એની ચિંતા નથી. છતાં અમે મેયર સાહેબને વારંવાર રજૂઆત કરી. મેયર સાહેબ મારા અંગત મિત્ર છે. એ આ કામગીરીમાં અમે સતત એમની સાથે અમે રહ્યા છીએ. અને એ મુદ્દામાં નિષ્ફળ રહેલા લોકો સામે અમે અહીંયા ટકરાવી રહ્યા છે, અમે કામગીરી કરી રહ્યા છીએ. એમને શરમ આવી જોઈએ. આજે અને ગઈકાલે મારા ઘરે લઈ જઈને, શું મારા ઘરે લઈ જઈને આ પ્રશ્ન સોલ્વ થઈ શકે છે? હું પોતે સામેથી એમના ઘરે જાઉં છું, તો મારા ઘરે લઈ જઈને પ્રશ્ન સોલ્વ થતો નથી. અને મારી હાઈકારા બોલાવો, મને જાનથી મારી નાખે ધમકી આલી છે. આજે અમે પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે. અને કોર્પોરેશનમાં આજે આવવાની, મને મારી નાખવાની ને મારવા આવવાની કોઈ જરૂર નથી. શા માટે? તમારા વિચારો ખોટા છે. તમે મારા વિરુદ્ધમાં કેન પ્રકારની સાજિશો રચો છો. અને આજ નહીં તો આવનાર સમયમાં મારા પર હુમલો થાય કે જે કંઈ બી થાય તેની પાછળ મુનાફ ચેનલ અને એની ટોળકી જવાબદાર છે. અને PID સાહેબને કીધું કે સાહેબ આપ શ્રી આના પર કડકમાં કડક સજા થાય, એ જરાય ચલાવી ના લેવામાં આવે એની કાળજી લઈ અને FIR નોંધાવો. FIR નોંધવાની છે. અને કામગીરી અમને વિશ્વાસ છે પોલીસ ઉપર કે આ કામગીરીમાં અમને પૂરેપૂરી મદદ મળશે, ન્યાય મળશે એવું આશા રાખીએ છીએ. મક્કમપુરામાં વિકાસ જે અમુક કામો બાકી છે, કેનાલની પાછળ જોડો તેની પણ બીજી જગ્યાઓ પર વિકાસ નથી થયો. ક્યાં ગટર લાઇનની પ્રોબ્લેમ છે, પાણીની પ્રોબ્લેમ છે, તેનું નિરાકરણ ક્યારે આવશે? ગટર લાઇનનો મસલો છે. જે જગ્યાએ ગટર લાઇન અમે ટેક્સ બિલ લઈ અને કામગીરી કરીએ છીએ, સિટીમાં ચાલીઓ છે, પોલ છે, ખાંચાઓ છે, ત્યાં નિયમ લાગુ પડતો નથી. નિયમમાં એવું છે
કે ખાંચો પોલ ગલી હોય તો એમાં કોઈ પણ જાતના ડાયરેક્ટ કામગીરી થઈ ગઈ, પણ અહીંયા સોસાયટી આવે છે, સોસાયટીમાં પાણી બી પહોંચાડવું હોય તો એ ચેમ્બર બનાવીને પંપ દ્વારા એ સોસાયટીની જવાબદારી કરવાની હોય છે. સોસાયટીમાં સફાઈ કામદાર બી જતા નથી. સોસાયટીમાં કોઈ બી કામગીરી કરવી હોય 80-20માં અમે 5 વર્ષમાં 10 વર્ષમાં ખૂબ મોટી સંખ્યામાં મોલ્લે ગલીમાં બ્લોક લાઇટ ગટર નાખી છે. એના કારણે અમદાવાદ શહેરમાં હાઈએસ્ટ વોટથી અમે જીતીને આવ્યા છે અને લોકોનું પ્રેમ મળ્યું છે અને અમને પ્રજાએ વોટ આપી છે. અમે કામગીરી કરીશું. અમે કામગીરી નહીં કરીએ તો કુદરત અમને માફ નહીં કરે. अच्छा, आप श्री ये जણાવશો કે જે મસ્જિદ યુસુફ પાછળ જે ડ્રેનેજ લાઈનનો છે તો જનતાને ઘણી ઉમ્મીદો છે તમારાથી, તો કેટલા દિવસમાં તેનું નિરાકરણ આવી શકે છે એટલે જનતા તે પ્રમાણે તેમની તૈયારીઓ કરે? મસ્જિદ ઇબ્રાહીમના મૌલાના, યુસુફ મસ્જિદના મૌલાના અને બીજા બધા સાથે સતત સંપર્કમાં રહી ગયા રમજાન મહિનામાં, એના પહેલાં, એના પછી તાજેતરમાં બી સુપર સર્કલ જઈ શકતો નથી, છતાં અધિકારીને, ડેપ્યુટી કમિશનરને બધાને માનવતા ખાતર કરીને બી આપણે કામગીરી કરી છે. હાલમાં આજે બધાને સંતોષ આવ્યો છે કે જે લોકોએ ગટરની અંદર રોડા કાગળ નાખી ગટર પૂરી દીધી છે, એ ગટર એની આજુબાજુની તમામ ગટરો તમે સાફ કરાવો, પૈસા હું આપીશ. भी वायरल हुआ है, क्या है पूरा मामला वो बताइए. देखिए, पिछले कई महीनों से जब से हम जीत के आए हैं उसके दूसरे दिन से जो हारे हुए लोग हैं, जो हताश हो चुके हैं, पब्लिक ने उनको घर भेगी कर दिए हैं, उनकी घर वापसी करा दिए, वो लोग दूसरे दिन से लिखना शुरू कर दिया था हमारे खिलाफ सोशल मीडिया में कुछ अनाप शनाप बोलते रहते थे और बहुत गंदी तरीके से, गंदी लैंग्वेज में हमारे ऊपर आक्षेप लगाते थे. हमने पीआई साहब से भी आके बात की थी. पीआई साहब ने ये कहा था कि आप आके एविडेंस दे दियो, मगर हमने ये सोचा कि ये आज नहीं तो कल सुधर जाएंगे, मगर ये सुधरने वालों में से नहीं हैं. 3 महीने से कंटिन्यूस हमारी ऑफिस के पार आके सामने खड़े रहना, हमको हैरेस करना, हमारे बारे में कुछ बोलना, और अभी तो हद ही कर दी. पब्लिक के बीच में जाके हमारे खिलाफ गलत बातें करके पब्लिक को उस्केर के ला रहा है. मैं जब से चुटा के आई हूँ और मेरे साथी तीनों काउंसिलर कंटिन्यूस हम काम कर रहे हैं. ऐसा नहीं है कि काम नहीं कर रहे हैं. हाँ, मैं इतना वीडियो नहीं डालती थी कि भाई एक गटर साफ कराई या ड्रेनेज हुआ कि ये हुआ कि वो हुआ. जो भी मसले हैं उसमें बार सोशल मीडिया में डाल के कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं पहले भी 30 साल काम कर चुकी हूँ NGO में और मैंने ये पब्लिक का ही काम किया है. अभी जिस तरह से ये एक्सेप्ट करते हैं कि काउंसिलर काम नहीं करते, ये वही नूरजहां दीवान है जो 2010 के अंदर इन पब्लिक की सुविधाओं के लिए, प्राथमिक सुविधाओं के लिए हाईकोर्ट के दरवाजे खटखटाए थे और 2 साल तक मैंने हाईकोर्ट के धक्के खाए थे और नदीम सैयद, तब जाके यहाँ पे सुविधाएं हो रही है. दूसरा कि AMC ने खुद ने आके एफिडेविट करा के दिया था कि हम लोग प्राथमिक सुविधाएं जुहापुरा में देंगे. तो जिन लोगों के लिए मैं हाईकोर्ट तक गई हूँ, क्या इन लोगों के लिए मैं काम नहीं करूँगी? इलेक्शन ही मैंने इसीलिए लड़ा था कि मैं कम से कम वहाँ पे मैन थीम में जाके काम करूँ. रात को सुपर सर्कल 12 बजे आता है ना, तो मैं 12 बजे से लेके 4 बजे तक वहीं पे एरिया में होती हूँ, फतेहवाड़ी में, एक लेडीज़ होके कि कहीं ये मजदूर भाग ना जाए, अच्छे से काम करे. दिन में 11 बजे से लेके 3 बजे तक मैं ऑफिस पे रहती हूँ. और ये बता रहे थे, कल हम कमिश्नर को मिलने गए तो ये बताते कि देखो ये ऑफिस बंद है, ताले हैं, नहीं आते. मतलब कितना झूठ बोलने की कोई एक लिमिट होती है. कल भी हाजी भाई, नादिया, हितेंद्र भाई, हमने कमिश्नर का, DYMC का हमने टाइम लिया था, तो उनको मिलने जाने का था. हम लोग यहाँ मिलने वाले थे तो ये लोग तीनों वहाँ पहुँचे और मुझे बार फ़ोन आते थे. तो मैंने बोला नहीं, पब्लिक आई है, उनको जवाब देना ज़रूरी है. मैं सिविक सेंटर पे आके पब्लिक से मिलने आई तो वहाँ पे पब्लिक को भड़काया गया गलत रीत से, और वो पब्लिक थी जो कैनाल के उस पार रहती है, जिनके पास टैक्स बिल नहीं है और इनकी बस्ती बहुत गंदी है. नो डाउट मैं 2-3 दफ़ा वहाँ जाके आई हूँ, देख के आई हूँ. मुझे बहुत बुरा लग रहा था और रोना भी आ रहा था कि इतनी ख़राब ज़िंदगी वो लोग जी रहे हैं कि ड्रेनेज का पानी उनके घरों में है, इनके किचन में है, आने जाने के रास्ते इतने ख़राब है, पाँव भी नहीं रख सकते, ऐसे इस तरह की परिस्थिति है. स्मेल इतनी गंदी आ रही है, फिर भी वो लोग वहाँ पे रह रहे हैं. और हम लोग
बार बार अधिकारियों को भी रजूआत कर रहे थे, मगर वहाँ से ये कहने में आया कि ये जो एरिया है वो नॉन टीपी एरिया है। तो नॉन टीपी एरिया में वहाँ का जो कॉन्ट्रैक्टर था उसने ये कहा कि मैंने जो कॉन्ट्रैक्ट लिया है वो एएमसी का लिया है, जहाँ पे सरकार ने ड्रेनेज बना के दिए। प्राइवेट ड्रेनेज जो है वो बिल्डरों ने बना के दिए, तो वो मैं साफ़ नहीं करूँगा। उसके बावजूद हाजी भाई, बहन नादिया, हितेंद्र भाई लड़ के बकेट भेज रहे हैं, कुछ न कुछ करें। मगर इस बार पानी इतना सारा आ गया, मतलब आप सभी को पता है कि 20 इंच पानी आया था और पूरा गुजरात डूब रहा था। और ज़्यादातर ये हमारा इलाका जो है वो रकाबी जैसा है कि पूरे अहमदाबाद का पानी मक्तमपुरा में आता है। आपको पता होगा कि ये पूरा एरिया जो है वो नदी इलाका था, वो तो धीरे धीरे नदी उस तरफ चली गई, सारी ड्रेनेजें बैक मार रही है। उसके बावजूद जितना भी पानी आया सारी ड्रेनेजें बैक मार गई। तो धीरे धीरे काम हो रहा है, नहीं हो रहा है ऐसा नहीं है, सारे लोग काम कर रहे हैं, बाकी एनजीओ के लोग भी कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं। मगर ये लोग हमारी ऑफिस में आके ये कह रहे थे कि हमारे पास अब कोई काम नहीं है, 5 साल तक हम लोग बिल्कुल फ्री है, 5 साल तक हम तुम्हारी नाक में दम ला देंगे और तुमको इतना हैरेस करेंगे कि तुम सामने से 6 महीने में रिज़ाइन कर दो। अरे हम रिज़ाइन करने वाले कौन हैं? आप हमारे से रिज़ाइन लोगे? आपको तो हम तो संघर्ष के साथ ही है, बरसों से हमने पब्लिक का काम किया है और मैंने तो नेशनल लेवल पे लोगों के हक की लड़ाई लड़ी है। जब मैं बाकी लोगों से नहीं डरी तो तुम्हारे 4-5 गुंडों से क्या डरने वाली हूँ। पब्लिक हमारे साथ थी, आज भी लोग हमारे साथ हैं और लोगों ने जंगी बहुमति से हमको जिताया है। पब्लिक को हमारे पे विश्वास था, इसीलिए पूरे गुजरात में लोगों के वोट नहीं आए। सबसे ज़्यादा कांग्रेस के अंदर हम 4 काउंसिलर के पूरे गुजरात में वोट नहीं है, इतने वोट लोगों ने हमको दिए हैं। तो हम पब्लिक का काम करेंगे, करते थे, आगे भी करेंगे। मगर आज जो बदतमीजी की, जो गाली गलौज की हमारे साथ में, मुझे जिस तरह से गालियाँ दी, हाजी भाई को जिस तरह से गालियाँ दी, मार डालने की धमकी दी, और कल जिस तरह से मेरे साथ बदतमीजी हुई, मोइन मंसूरी करके जो बदतमीजी कर रहा था, पब्लिक को उसके रही है, बोलो बोलो गाली दो, बोलो बोलो। मेरे पास वीडियो है, वो मेरे पास में वो सबूत है। तो तुम पास रह के हमारे साथ बदतमीजी करवाओगे हमारी, इन लोगों को हम बख्शने वाले नहीं हैं। आज हम इनके खिलाफ FIR कराने वाले हैं। अच्छा, आपको आवाम जो मक्तमपुरा वार्ड की आवाम है उनको आपसे बहुत उम्मीद है, आप पहली बार काउंसलर बने हैं। कुछ दिनों पहले केनाल में एक फैज़ान नाम का 11 साल का लड़का इंतकाल कर गया था। बताया जा रहा है कि उनके परिवार से और उस घटना स्थल तक अभी तक कांग्रेस के कॉर्पोरेटर कभी मुलाकात के लिए नहीं गए। देखिए, फैज़ान का जब सुना ने तो मुझे तनवीर ने फ़ोन किया, फ़ौरन मैं एक्टिवा लेके वहाँ कैनाल पे गई, तनवीर को फ़ोन करा कि तनवीर मैं कैनाल पे खड़ी हूँ। तो क्या बच्चा बहुत आगे निकल गया है, नरीमान तक चला गया है, नुरजापा वहाँ कोई है नहीं। मैंने कहा पब्लिक खाली देख रही है। तो फिर तनवीर ने क्या करेंगे, मैं नरीमान पूरा जाता हूँ। मैंने बोला तनवीर मुझे भी लेके जा। तो क्या अच्छा तुम अंबर टावर आ जाओ। मैं अंबर टावर गई, तनवीर को फ़ोन कर रही थी, तनवीर का फ़ोन स्विच ऑफ आ गया था, उसका चार्जिंग ख़त्म हो गया था। उसके बाद मैं यहाँ PI के पास आई, PI के साथ बात कर रही थी। ऐसे में अजीज सैयद जो है उसका मुझे फ़ोन आया कि कैसे काउंसिलर हो, तुमको पता नहीं चलता, बच्चा यहाँ पे गिर गया है मासूम, उसके घर वाले तड़प रहे हो और तुम कुछ कर नहीं रहे। तो मैंने उसको बोला अजीज सैयद को कि भाई तू मुझे वीडियो कॉल कर, अभी वीडियो कॉल कर, मैं PI के पास में ही बैठी हूँ, देख ले मैं कहाँ हूँ। तो क्या अच्छा तो तुम PI के पास क्या कर रहे हो, तुम वासड़ा जाओ, पानी बंद कराओ। तो मैंने PI से बात की, मैंने कहा सर पानी बंद कराना है। तो PI ने बोला मैंने रिपोर्ट लिख के दे दिया है, सिस्टम होगी तो वहीं वासना भेज दिया है, क्योंकि यहाँ से रिपोर्ट लिख के देना पड़ता है तो ही पानी बंद होता है। तो मैंने बोला जिसने पानी के गेट बंद करे हैं उसका मुझे नंबर चाहिए। तो PI ने खुद ने मुझे नंबर दिया वासना वाले का, आज भी मेरी डायरी में मौजूद है। मैंने उसको फ़ोन करा तो उसने मुझे बोला कि बहन हमने बैरेज बंद कर दिए हैं, 2.5 घंटे लगेगा, वो पानी स्लो जा रहा है बनोने। और दूसरी एक बात कि मैंने फिर अजीज सैयद को फ़ोन करा वापस, मैंने कहा भाई वो पानी बंद हो गया है, यहाँ से रिपोर्ट चला गया है। तो फिर उसने बताया मैं मिमका हूँ और नुरजापा तुम्हारा काम बहुत अच्छा है, लो ये जुबेर से बात करो। तो कोई जुबेर नाम का लड़का था, उससे भी मेरी बात कराई। तो ऐसा नहीं है कि हम उसमें नहीं थे। और हम जब गए वहाँ पे दूसरे दिन भी गए थे और उनके घर पे जाके आए थे। हाँ, ऐसा नहीं है कि नहीं गए।
पर उनके परिवार वालों को पता नहीं था कि कौन है, मगर हम बैठ के तो आए हैं। मगर आज भी पीआई मौजूद है कि मैं उससे मिलने आई थी कि नहीं आई थी। आप बैरेज वाले को फ़ोन करो कि नूरजहां दीवान काउंसिलर का फ़ोन आया था कि नहीं आया था। आने वाले बच्चे वक्त में पढ़ते हैं। कैनाल के लिए आप क्या जितने भी बच्चे पढ़ते हैं, देखिए कैनाल के जितने भी बच्चे पढ़ते हैं, हम उसको इंश्योरेंस होता है विद्यार्थी का, वो इंश्योरेंस के पैसे भी दिलाते हैं। और कम नसीबी वो है कि यहाँ से वासना से लेके नरीमनपुरा तक हमने वहाँ पर एंगल से तार की फेंसिंग कराई थी। आज वो फेंसिंग भी हमारे चोर चपट्टे चुरा के ले गए। साथ साथ लास्ट टाइम पे सामान्य सभा में आप जो बोल रहे हो उसके लिए, उसके पहले बच्चे मरे उसके लिए हमने बार बार उठाया। जैसे खारीकट कैनाल को तुमने बंद किया है, ऐसे यहाँ बंद करना चाहिए, गार्डन बनाना चाहिए। और कैनाल के पैरेलल 2 रोड बनाना चाहिए, नरीमनपुरा से वासना ब्रिज तक। ये हमारी बार बार रजूआत रही है प्रशासन से। सामान्य सभा में ऑन रिकॉर्ड है और मेयर साहब ने उसको कहा है कि नहीं हम इसको देख लेते हैं। इसके पहले अमित शाह वासना का हमारा धारासभ्य और बीजेपी पटेल, उनसे भी बात हुई। उन्होंने खुद ने भी कहा कि पर्यावरण लगता है, पर्यावरण में वो करेंगे। पहले सिंचाई विभाग था, सिंचाई विभाग में से वो हुआ, अब ये गुजरात नर्मदा विकास निगम में आया है। तो नर्मदा विकास बोलते हमने अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को सौंपा है, लेकिन आज दिन तक वो रिकॉर्ड नहीं बता रहे। तो हमने कल ही डिप्टी कमिश्नर को कहा कि भाई गुजरात राज्य नर्मदा विकास निगम, सिंचाई, अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, ब्रिज डिपार्टमेंट और हम और आप और डिप्टी कमिश्नर संयुक्त एक मीटिंग करो, जिससे हमको गोल गोल बोल फेंका ना जाए। वो के उसके पास ना, वो के उसके पास, ये इनके इन प्रकार के बहाने न बनाया जाए और ये सचोट कामगिरी होगी। आज नहीं तो कल लंबे गाली की कामगिरी भले लेकिन होगी, तो ही लोगों को परेशानी दूर होगी। यही 5600 के नाले के लिए हम 5 साल से लड़े। हमने ब्रिज ऊपर मांगा कि तुम नाला ये रहने दो, उसके ऊपर ब्रिज बना दो, ताकि मोहम्मदी सोसाइटी वहाँ भी चौड़ा है और यहाँ पर जो होटल सवेरा यहाँ भी चौड़ा है, सीधा ही ऊपर चले जावे और लोगों को आसानी हो जाए और लोग परेशान ना हो, ना कोई बड़ी होनारत ना हो। आज के बारे में मैं यही कहूँगी कि नॉट एक्सेप्टेबल। कॉरपोरेशन के ऑफिस में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, रूल के ख़िलाफ़ है। कॉरपोरेटर के ऊपर भी ये जो हमला हुआ है हमारे सीनियर कॉरपोरेटर पर, हाजी भाई पर, वो भी नहीं होना चाहिए, नॉट एक्सेप्टेबल है। फिर वहाँ पर एक पार्टी के, बीजेपी पार्टी के वहाँ पर फ्लैग्स मिले हैं, ठीक है, वो भी नॉट एक्सेप्टेबल है। क्योंकि कॉरपोरेशन के रूल के हिसाब से वो कॉरपोरेशन आवाम की है, वो कोई एक पर्टिकुलर पार्टी की नहीं है। तो वहाँ पर पार्टी का प्रचार करना अलाउड नहीं है। जो चीज़ें ये लोग कर रहे हैं ये सब बहुत नॉनसेंस थिंग है। जैसे कि उनको पता है कि वो जो एरिया है वहाँ पर पर्सनल ड्रेनेज लाइन है, वो कॉरपोरेशन में नहीं आती है, ठीक है, फिर भी उनको पता है। तो आवाम को वहाँ भड़का कर रोज़ लेकर यहाँ पर आना और इतना बवाल करना, डिस्टर्ब करना, हमारे काम में डिस्टर्बेंस करना और फिर कहना कॉरपोरेटर काम नहीं करते। सबको पता है कि यहाँ पर मशीन की शॉर्टेज है। सिर्फ मक्तमपुर वार्ड में नहीं, अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मशीन ही नहीं दे रही थी। हम लोग जैसे पर DYMC से मिले, अंकित पन्नू से मिले, तो सबने वो वीडियो देखा होगा कि वहाँ पर हमने मशीन की डिमांड की है, तो यहाँ पर मशीन नहीं थे। अब हमें मशीन मिलने वाली है तो हम काम करेंगे। जैसे कि प्राइवेट ड्रेनेज लाइन है, हमने सोचा था कि हम हमारे हिसाब से वो कॉरपोरेशन में नहीं आती, फिर भी जब मशीन अवेलेबल होंगे तो हम प्राइवेट लाइन भी हम करवा देंगे। लेकिन वहाँ तक कहते आवाम के कान भर चुके थे, भड़काना हो चुका था और वहाँ तक आवाम आ गई। इसमें गलती आवाम की नहीं है, अदर पार्टी की है जो ये कर रहे हैं। बात रही बीजेपी की और दूसरी बी टीम, हम गए थे आज पुलिस स्टेशन वहाँ पर कंप्लेन करने के लिए। आपने देखा होगा भाई, हम बीजेपी की वहाँ के जिन्होंने बदतमीज़ी की है उनकी कंप्लेन करने गई थी। यहाँ पर बी टीम क्यों जवाब दे रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो ये तो साबित हो गया ना, जो मीम पार्टी है वो बी टीम है, क्योंकि हम तो बीजेपी की कंप्लेन करने गए थे आज। तो मीम वालों को क्यों इतना मतलब प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब ये साबित हो गया कि ये बी टीम है। जोली भाई, आप इतने सालों से कांग्रेस पार्टी में हो, आप विपक्ष में भी रहे मक्तमपुरा में, और अभी तक आपने जो ये इस बार कंट्रोवर्सी हुई है, इस बार ऐसी कंट्रोवर्सी कभी देखी नहीं होगी, इसके बारे में क्या कहूँगा? 2010 से जब मक्तमपुरा वार्ड बना और कॉरपोरेटर यहाँ से कांग्रेस पार्टी के चुटाए, फिर उसके बाद 15 में चुटाए, फिर 21 के अंदर जब मीम पार्टी आई, तो हम कांग्रेस वालों ने जो काम कराना था वो उनके पार्टी के जो काउंसिलर थे उनको बोलते थे कि ऐसा करो, ये करो, और वो काम करते थे। और हमने कभी उनका कोई विरोध नहीं किया,
क्योंकि हमको लगता था कि ये काम हो रहा है तो हम उनको सपोर्ट करते थे। तो आज वो हार जीत तो हर एक पार्टी की होती है। आज कांग्रेस है, कल मीम है, बीजेपी है, जो भी पार्टी, जो आवाम जिसको भी वोट देगी वो जीत के आएगी और काम करना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल हमारे जो कांग्रेस की टीम आई है, पूरे चार काउंसिलर आए हैं, तो अभी नए उसके अंदर 3 नए हैं और 3 नए हैं, 1 जूने हैं। अब वो उनको टारगेट बना के सबको साथ में यानी ये करना चाहते हैं कि काम नहीं हो रहा है, नहीं करते, ये नहीं करते। नॉन टीपी इलाके के अंदर कॉरपोरेशन ने कोई गटर लाइन डाली नहीं है। यहाँ के बिल्डरों ने मकान बना के और जैसे रास्ता देखा उधर पाइप डाल दी और जॉइंट कर दिया। अब वो वहाँ पे भरा गई है और उभरा रही है। तो ये जवाबदारी किसकी है? हम आवाम को बोलते थे कि नॉन टीपी ये सरकारी जगह के अंदर आप मकान मत लो, लेकिन उस टाइम पे आवाम यूँ बोलती है कि हम जो भी सबका होगा वो हमारा होगा। तो क्या ये बात है? तो आज ये जो भी बात करते हैं और जो भी यानी अपने आप को नेता समझकर और अपने आप को हाईलाइट करके, ये सब गलत बात है। एक दूसरे काउंसिलर हार जीत तो सबकी होती है, लेकिन एक दूसरे को साथ सहकार देना चाहिए और नहीं देने की जगह ये तो अपना विरोध करते हैं और करवाते हैं और खोटे रिश्ते कराते हैं। कोई सही रिश्ते भी हो तो बात अलग है। अब नॉन टीपी के अंदर तुम वहाँ की पब्लिक को भड़काओगे और यहाँ काम कराओगे तो भी मानवता के खातिर ऑफिसरों को काउंसिलर, चार काउंसिलर बात करते हैं और बात करके काम करवाते हैं, लेकिन काम रुकावट में होता है। क्योंकि जो मक्तमपुरा के अंदर 21 इंच बारिश हुआ है कि सोनल इलाके जैसे में भी पहली दफ़ा ये बारिश हुआ है 2000 की साल में, जब 20 इंच आया था, जब सोनल में पानी आया था। आज वापस वो 21 इंच के हिसाब से सब बाजू पानी भरा गया है। पूरे अहमदाबाद की आप तमाम को मालूम है कि क्या हुआ है। तो पानी भरा है तो उसका गैर उपयोग करके लोगों को भड़का के, काउंसिलरों के विरोध बोल के ये बातें जो भी करते हैं वो गलत करते हैं और उसका हम ये जो गलत काम करते हैं, गलत भड़काते हैं, उनका हम भी विरोध करेंगे अब, क्योंकि यही सिखाते हैं तो हम भी सीखने तैयार है। अब हम अभी तक तो हम क्या समझते थे कि हमारे मुसलमान भाई बहन जहन है, हमारे सामने हार जीत तो होती रहती है, लेकिन जब वो सामने से हमारे सामने आएंगे तो हम उनके भी चिट्ठे, हमारे पास बहुत कुछ है, हम भी चिट्ठे खोल सकते हैं और उनको बाहर बाजार में ला सकते हैं। तो मेहरबानी करके जो मक्तमपुरा विस्तार के अंदर जो काम होता है उसको होने दो और सब मिलजुल के काम को आगाज करते जाओ और काम बढ़ाते जाओ, यही हमारी तमन्ना है। कॉर्पोरेशन ऑफिस के अंदर आपके कार्यकर्ता और बीजेपी के कार्यकर्ता के बीच में गाली गलौज हुई, धक्का मुक्की हुई, कितनी हद तक बात कहवाई? ये बिल्कुल गलत है। जैसे कि अवाम आई थी, अवाम को व्यवस्थित जवाब दिया हाजी भाई नूरजहां आपा ने, और जवाब देकर जब वो बाहर हंसते हुए निकले तो जो हमारे विरोधी थे उनको देख नहीं सके, हमारे उनकी यानी मिर्ची लगी उनको, क्या तो वो लोगों ने बी टीम को मिर्ची लगी और वो लोग फिर वापस वो हंसते निकले, जवाब अच्छा मिला वो, और उनका काम करने का हमने वादा किया और इंशाअल्लाह हम काम करेंगे। लेकिन वो जब बाहर निकले तो उनको अच्छा नहीं लगा तो वो उस्कराई और उस्करा के हाजी भाई के ऊपर मारने के लिए मुनाफ भाई आए तो मुनाफ भाई को मैंने पकड़ लिया और मुनाफ भाई को वापस कम से कम 3 मरतबा वो हमला करने आए अंदर, मैंने पकड़ कर समझा के बाहर निकाला, लेकिन बाहर भी वही चालू था। और उसके हिसाब से आज सीनियर काउंसिलर हाजी भाई है और हाजी भाई की उम्र है और उसके ऊपर कुछ भी ऐसा अटैक हो जाए तो क्या कर सकते हैं। और हम पुलिस फरियाद लिखाई है, चार काउंसिलर ने मिल के हाजी भाई के साथ और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर आगेवान सब साथ में जाकर फरियाद हुई है। और हमको पुलिस प्रशासन पे विश्वास है कि पुलिस प्रशासन उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही करेगी। नदिया, इस लड़ाई में ऐसा ना मक्तमपुरा की प्रजा को विकास ना मिले? नहीं, ये लोग चाहते ही वही है। ये एक्चुअली क्या चाह रहे हैं कि हम लड़ाई झगड़ों में बिजी हो जाए और विकास की बात ना हो।
काम ना हो, हमको बिजी रख दे। लेकिन बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। आज मैंने पुलिस स्टेशन में बैठ के भी काम करवाए, क्योंकि मुझे पता है कि ये लोग हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये हमको ये लड़ाई झगड़ा करने का मकसद ही है कि कॉरपोरेटर को ये कंट्रोवर्सी में लेकर इनको डिस्टर्ब रखा जाए और काम ना हो। लेकिन हमारा कंसंट्रेशन पूरा है, मेरा तो बिल्कुल है। मैंने पुलिस स्टेशन में बैठ के भी वहाँ पर भी अधिकारियों को फ़ोन करे और जहाँ काम करना था वहाँ पर भेजे हैं मैंने, और काम होगा, इंशाल्लाह होगा। अभी सिर्फ 3-4 महीने हुए हैं, 5 साल निकालने। हर काम का एक वक्त होता है। देखो 5 साल पहले जिन्होंने जो पार्टी थी भाई, उन्होंने कितना काम कर लिया, सबको पता है, ठीक है। कुछ करा नहीं था उन्होंने, तो हमको तो सिर्फ 4 महीने हुए, तो धीरे धीरे सब काम होगा इंशाल्लाह। आवाम को छेल्ला संदेश क्या दोगे? आवाम को छेल्ला संदेश यही देंगे, थोड़ा सब्र करें आप। मशीन की थोड़ी सी शॉर्टेज थी, वो हमने बात की है, हमको मिल जाएंगे तो हम सब जगह काम करेंगे। और जो पर्सनल ड्रेनेज है जो कॉरपोरेशन में नहीं आती है, इंशाअल्लाह वहाँ पर भी हम कोशिश करेंगे कि हम काम कर पाए और किसी के भी भड़काने में ना आए। ये आपको भड़का रहे, आपके वीडियो ले रहे, ये व्यूज़ ले रहे, इनके इंस्टाग्राम अकाउंट की रीच ले रहे आपकी वीडियो लेकर, बाकी आपकी मदद नहीं करेंगे, तो इनके भड़काव में ना आए। बस आवाम से ये रिक्वेस्ट है, थोड़ा सब्र करें, हमें सपोर्ट करें, हम आपको सपोर्ट करेंगे। आपने हमको वोट दिया है तो हम यहाँ खड़े हैं। देखिए, पिछले 15-20 दिनों से मकतमपुरा की जनता बहुत परेशान है। ड्रेनेज की समस्या रोज़ लेकर आती है और काउंसिलर उस पर ध्यान नहीं देते, और स्थानिक जनता जो भी है वो देखती है कि हम लोग वहाँ मकतमपुरा वार्ड ऑफिस में आधार कार्ड की सेवा देते हैं, फॉर्म भरते हैं। आयुष्मान कार्ड के लिए कोई आता है उसके लिए फॉर्म भरते हैं, और पब्लिक को इस बार भरोसा है कि भाई बीजेपी कार्यकर्ता है जो अगर इनको रजूआत करने में आएगी तो ये हमारा कुछ काम करके देंगे, और पब्लिक के भरोसे पे हम खरे उतरे। जो जो वार्ड की, जो जो एरिया की मकतमपुरा वार्ड से हमें समस्या आई थी, हमने उसका निराकरण ला के दिया, उसका प्रॉब्लम सोल्व करके दिया। और वही देख के दूसरे वार्ड की भी, मकतमपुरा वार्ड में से भी कहीं दूसरी पब्लिक आई थी, तो उनके लिए मैं कल हाजी भाई को रजूआत करने गया था। हाजी भाई वार्ड ऑफिस थे नहीं, तो पब्लिक का ऐसा कहना था कि भाई हमने हाजी भाई को कई बार फ़ोन किया, हाजी भाई फ़ोन नहीं उठाते हैं, और आज वार्ड ऑफिस में भी नहीं था, आप उनके घर ले चलो। मैं उनके घर लेकर गया, पब्लिक वहाँ पर शांति से रजूआत कर रही थी, तो वहाँ पर भी इन्होंने गलत मैसेज वायरल किया। उनके लड़के से पब्लिक रजूआत करने के लिए बात कर रही थी, तो उनके लड़के ने ये कह दिया कि वो मुनाफ चैनल वाला खड़ा है, उनको बोलो धारा सभ्य के पास ले जाए। अरे भाई, काउंसिलर आप हो और वार्ड की जनता ने आपको वोट दिया है, तो आपको ही काम करना है। धारा सभ्य तो अपना काम कर ही रहे। धारा सभ्य ने मकतमपुरा वार्ड में जिम दिया, लाइब्रेरी दी, 2 स्कूल पास हुई है, अभी APJ अब्दुल कलाम हॉल बना के दिया। और रोड गटर की जो समस्या वो काउंसिलर के देखने की आती है, तो काउंसिलर इस समस्या से छूटने के लिए अवर-नवर धारा सभ्य को टारगेट करते हैं और पब्लिक को गैर मार्ग दौड़ते हैं। मैंने पब्लिक को कल कहा था कि भाई अगर आज काउंसिलर आपको नहीं काम करके देते तो हम कल फिर वार्ड ऑफिस जाएंगे, और आज हम फिर वार्ड ऑफिस गए, और हाजी भाई वहाँ बैठे हुए थे, और पब्लिक वही थी जो कल इनके घर गई थी। तो रजूआत कर रहा था, तो मुझे बदतमीजी से हाजी भाई ने ये कहा कि तू तेरे धारा सभ्य के पास जा, यहाँ काम नहीं होगा, और बदसलूकी करने लगे। तो मुझे भी थोड़ा अपशब्द बोलना पड़ा, और आपने देखा ही होगा कि वीडियो फिर वायरल हुई। अच्छा, ये कौन से इलाकों में अभी ड्रेनेज की समस्या है मकतमपुरा वार्ड में, वो आप बता सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो बरसों जूना संकलित नगर है, वहाँ पर भी आज भी ड्रेनेज लाइन ओवरफ्लो हो रही है। फतेहवाड़ी विस्तार ले लो, फतेहवाड़ी के अंदर यूसुफ मस्जिद ले लो, यूसरा पार्क ले लो, आमेना पार्क ले लो, हाफिजी मस्जिद ले लो। आज की तारीख में भी आज जो मेरी उग्र बोला चालू हुई, इन लोगों ने मुझे परेशान करने के लिए पुलिस बुलाई। मैंने भी सामने क्रॉस फरियाद की। मैं पुलिस स्टेशन से 3 बजे आया जवाब लिखाकर, तो भी मकतमपुरा वार्ड में 70 से 80 मेरी माँ बहनें बैठी हुई थी, और काउंसिलर आज भी भाग गए थे।
काउंसिलर का ये कहना है कि सत्ता हमारे पास नहीं, भाजपा की सत्ता है, तो भाजपा के पास जाओ काम कराने के लिए, इसके बारे में क्या कहोगे? देखिए, काउंसिलर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, काउंसिलर को काम नहीं करना है, इसी वजह से वो भाजपा का नाम ले रहे हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई काम नहीं हो रहा है तो आप राजीनामा दे दो। मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ, पेटा चूटनी हुई और मक्तमपुरा की जनता ने बीजेपी का काउंसिलर जिताया तो आपके वहाँ विकास होगा होगा होगा। उनका ये भी कहना है कि आप हमारे घर पे आते तो बीजेपी के धारासभ्य के घर पर क्यों पब्लिक को लेके नहीं जाते? मेरे साथ एक भाई बैठे हुए ही है, मैं 3 रोज पहले उनको लेकर गया हूँ धारासभ्य के पास और हमने क्या रजूआत करी है वो भाई खुद बता देंगे आपको। आगे तो मक्तमपुरा का काम किस तरह होगा? देखिए, अगर काउंसिलर काम नहीं करेंगे तो इसी तरह से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और आपसे राजीनामा मांगा जाएगा। बीजेपी क्या मदद करेगी मक्तमपुरा वार्ड में? बीजेपी ने पहले भी मदद की है। मक्तमपुरा के वार्ड के विकास के लिए हमारे धारासभ्य श्री हमेशा खड़े हुए हैं और मैंने जब जब अमित भाई ठाकर को रजूआत की है, ऑन द स्पॉट काम हमारा किया हुआ है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये जो राजकारण गरमाया है ड्रेनेज लाइन को लेकर, तो भाजपा का नाम लेकर जो कांग्रेस काउंसलर हैं वो जो आम जनता है उनको गैर मार्ग पे मतलब भेज रही है, मतलब मिसगाइड कर रही है? जी बिल्कुल, मेरे पास कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं की वीडियो है, वो पब्लिक को डरा रहे हैं कि ये बीजेपी वाले हैं, इनको कॉल मत करो, इनके साथ मत जाओ, ये आपके मकान तुड़वा देंगे। यानी ये सरासर इनकी नाकामी छुपाने के लिए बीजेपी को बदनाम कर दे। यानी एक तरीके से जो आप बता रहे हैं कि अगर आप समस्या बताओगे तो डिमोलिशन का डर बता। हाँ, मेरे पास वीडियो है। તમારું નામ અને પરિચય? मेरा नाम आलमगीर है। આજે અમદાવાદ કોર્પોરેશન ઓફિસમાં એક વિવાદ થયો તો શું વિવાદ હતો? आज मैं मेरे काम से कॉरपोरेशन के ऑफिस में गया था। जब अंदर जैसे एंटर हुआ, ऐसे मुनाफ चैनल जो है ये हमारे यहाँ के कॉरपोरेटर है जो कांग्रेस के हाजी भाई और नूरजा दीवान, इनको अनाप शनाप गालियाँ गुलूस कर रहे थे। अब इसमें मेन मसला ऐसा था कि जो यूसुफ मस्जिद का जो मसला चल रहा है, वहाँ पे कल मैं दोपहर में गया था। उनकी बात आपकी मीडिया के माध्यम से मैंने देखी, उनकी जो तकलीफ़ थी, इसलिए मैं वहाँ पे गया। वहाँ के लोगों से मैंने बात की तो कल वो लोगों को ये बहला फुसला के मुनाफ चैनल पहले कॉरपोरेशन के ऑफिस में लेके आया, फिर हाजी भाई के घर पे ले गया। जबकि इसने ये जो कहा पूरा प्लानिंग के तहत करा, पब्लिक को बहला फुसला के ले गया कि तुम्हारा काम ऐसा नहीं होगा, तुम इस तरह के चीज़ें करोगे, वहाँ पे धरना दोगे या अनाप शनाप बोलोगे तभी होगा। तो वो उसको चलते मैंने वहाँ के लोगों से बात की। वो लोगों ने बोला कि हम नहीं आलम भाई, हम लोग ऐसे नहीं आए थे, हमको ये खुद मुनाफ चैनल लेके गया था। मैंने बोला कि तुम्हारे यहाँ का जो काम है, ये जो तुम्हारे गटर है जो भराई है, ये बिल्डरों ने बनाई है और बिल्डरों ने जो प्राइवेट जो गटरें बनाई होती है वो कॉरपोरेशन में नहीं आती है और जो मेन चैम्बर है उसका काम कॉरपोरेशन करती है। प्लस वो एरिया के अंदर टैक्स जाता नहीं है और किसी के टैक्स बिल भी नहीं है। आज गाली गलौज हुई कॉर्पोरेशन के ऑफिस में, उसके बारे में? हाँ, आज जो गाली गलौज हुई तो मैंने जाके मुनाफ चैनल को बोला कि भाई क्या हुआ, मैंने किस लिए मगजमारी करते हो? तो मेरे को ऐसा धक्का मार के बोल रहे कि तू कौन होता है। तो मैंने उसको बोला कि भाई तू कौन होता हैगा कि तू इस तरह के यहाँ पे झगड़ा करता है। इसलिए हम दोनों के बीच में थोड़ी मुँह मारी हुई। लेकिन मुनाफ चैनल का काम यही है कि यहाँ के लोगों को भड़का के कॉरपोरेटर के विरोध करता है। मैंने इसको कुछ दिन पहले 2-3 बार सवाल भी करे कि भाई अगर तुम्हारी नज़र में यहाँ के कॉरपोरेटर काम नहीं करते तो तुम बीजेपी के कार्यकर्ता हो, हमारे यहाँ के एमएलए अमित भाई ठाकर, तुम उनके पास ले जाके क्यों तुम रजूआतें नहीं करते हो? अगर ये इंसान के मुनाफ चैनल के यहाँ के पब्लिक का काम करना होता तो कब से ऊपर लेवल पे बात करके काम करवा सकता था, क्योंकि सत्ता में बीजेपी है, कॉरपोरेशन में बीजेपी है, यहाँ के एमएलए भी बीजेपी के है और ये खुद बीजेपी का कार्य करता है। लेकिन इसको पब्लिक का काम नहीं करना है, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मक्तमपुरा वार्ड के कॉरपोरेटरों का विरोध करता है और ये भोली भाली हमारी जनता को बेला फुसला के इनका फ़ायदा उठा के और ये चीज़ें यहाँ पे मगजमारियाँ करवाने का इसका काम है।